Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to solve one more question on capital budgeting, advanced question, and it will be a different question from the last we already appeared. So आज के सेशन में हम कैपिटल बजटिंग का एक एडवांस क्वेश्चन करने जा रहे हैं. जनरली ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टूडेंट देख के ही अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज के बाद से आप ये कोशिश करना बंद कर देंगे. अगर आप ये ऐसे कोशिश करते हैं तो बहुत ही ईजी होते हैं. ठीक है, तो अगर आप एक इनिशियल लर्नर हैं तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और अगर आप एक एक्सपीरियंस लर्नर हैं तो आप चैलेंज ले सकते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू और क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को. टाइम मैनेजमेंट भी बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अपनी स्पीड को वो इम्प्रूव करते हैं. हर बार वीडियो की स्पीड को बढ़ा करके विद इन दैट स्पीड वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं. अगर आप कुछ और यूनिक बेनिफिट निकाल रहे हैं इन सेशन से तो हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे. तो लेट्स सी, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कैपिटल बजटिंग. सो वी हैव अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस ऑन कैपिटल बजटिंग. A company is forced to choose between the two machine A and B. Means company should choose between A and 2. The name of the machine is machine A and machine B. The two machines are designed differently but have identical capacity. They are designed differently. One second. Okay. They are designed differently but have a identical capacity. Their capacity, that means an output is same and do exactly the same job. Machine A cost rupees 3 lakh and life is 3 year. Okay. However, it cost rupees 80,000 per year to run. That means a running expense is fixed. That is an 80,000 per year is a running expense of machine A. Cost of machine is 3 lakh, life is 3 year. Then we have a machine B in economy model costing rupees 2 lakh but will last for 2 years. Means the cost of machine B is rupees 2 lakh and life is 2 year and the cost is 1 lakh 20,000 per year to run. There are real cash flows. These are real cash flows and the costs are forecasted in rupees of constant purchasing power. Ignore the taxation. Opportunity cost of capital is 10% and the value of which machine company should buy. So kindly give me a quick movement to conclude in the language. कंपनी को दो मशीनों में चूज करना है, मशीन ए और मशीन बी. मशीन ए को जो परचेज किया है दोनों बिल्कुल ही आइडेंटिकल काम करती है, डिजाइनिंग में डिफरेंट है. मशीन ए जो है उसका खर्चा जो इनिशियल कॉस्ट उसको बाय करने का लगा था वो 3 लाख रुपए था. 3 साल उसकी लाइफ है मशीन की और 80,000 रुपए हर साल लगेंगे. मशीन बी है उसको परचेज करने का खर्चा लगेगा 2 लाख रुपए और उसकी लाइफ होगी 2 साल और उसका हर साल का खर्चा आएगा 1,20,000 रुपए. क्वेश्चन ने ये बोला है कि भाई आप टैक्स को इग्नोर कर दो और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% है. अब कंपनी कौन सी मशीन चूज करेगी? तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आने से स्टूडेंट वैसे ही नर्वस होकर क्वेश्चन छोड़ने का बिल्कुल डिसीजन ले लेते हैं. तो चलिए आज वो डिसीजन अगर आपने भी लिया है कभी अपनी लाइफ में तो उसे छोड़ देंगे. सो लेट्स टुगेदर लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, so we will do the evaluation. Okay, so there is a no hard and fast rule that you should create a table, but I am going to prepare the table for the good presentation. Machine A and machine B. Okay, so we need to check the cash flows. Cost of purchasing. So to purchase a machine A, what will be the outflow? 3 lakh and 2 lakh for B. 3 lakh for machine A and 2 lakh for machine B is the initial outflow. Okay, and then we have a running cost. Running cost. So for machine A, what is the running cost is 80,000 for 3 years. So it's my request to refer the annuity table, but I believe that you don't have annuity table in front of you, so I would like to share the figure of annuity table for 3 years at the rate of 10% because the rate is opportunity cost rate is 10%. So please write the annuity value 2.486. Do the multiplication.
it will be 1,98,880. And for machine B, the outflow was 1,20,000 for 2 year at the rate of 10%. Please write the annuity table 1.735. It will be 2,08,200. So we can calculate the total present value of cash outflow. Total outflow we can calculate with this way: 4,98,880. Okay, and we have 4,08,200. Okay, in the examination you are going to get the annuity value if the question asked. Okay, so that's why I shared with you the annuity value. So now we have to calculate the equivalent present value of cash outflows. So we need to calculate that. So for that we need to divide this by 2.486 and this by 1.735. Why we are doing this? Why we are doing dividing this? Because we able to calculate that in every year how much will be the outflow. Please make it the round off. It's 2,06,676. 2,06,676. And in the second case, you have 235,274. So you can check that the annual present value of the cash outflow is lower in case of A. You can see that it is a lower in case of a machine A. So company should buy the machine A. Okay. Okay. So company should go and buy the machine A because machine A seems to be a profitable, because annual cash outflow is lower. Annual cash outflow is lower in case of machine A. Okay. Kindly give me a quick moment to conclude in other language. तो हमें इवैल्यूएट करना है कि मशीन ए और मशीन बी में क्या परचेज करना है. हम नेट आउटफ्लो करेंगे कैलकुलेट, ठीक है, क्योंकि जेब से कितना जा रहा है यही बताएगा कि हमें कौन सी मशीन लेनी चाहिए. क्योंकि दोनों मशीन का जो है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, दोनों मशीन की कैपेसिटी आइडेंटिकल है, यानी एक जैसी है. ठीक है, तो हम दोनों मशीन को हम जो है टेबल फॉर्म में आपके साथ प्रेजेंट कर रहे हैं. आप इसे किसी भी फॉर्म में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स रूल नहीं है. मशीन ए को परचेज करने पे 3 लाख रुपए हैं और बी को 2 लाख रुपए. ये नेट आउटफ्लो आपका बेसिक आउटफ्लो. फिर उसके बाद जो रनिंग खर्चा है मशीन ए का 80,000 रुपए हर साल का, और उसकी लाइफ 3 साल थी. तो हम एन्युटी टेबल से 3 साल की जो है एन्युटी वैल्यू ले लेंगे, जो आएगी 2.486. तो आपकी टोटल वैल्यू आ जाती है 1,98,880. ये भी आउटफ्लो है क्योंकि ये हर साल का है और वो इनिशियल हो गया. टोटल आउटफ्लो आ गया आपका 498,880. सेटिस्फाइड है? कुछ भी याद नहीं करना है, सब प्रैक्टिकली होगा और एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लेकिन मेरे को ये है कि ज्यादा एडवांस पे जाने के लिए उससे बेसिक लेवल आपको एक बार माइंडसेट हो जाना चाहिए, है ना. इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ. उसके बाद जो मशीन बी है, मशीन बी में क्या है, 1,20,000 रुपए, वो भी हर साल होंगे. मशीन बी की लाइफ लेकिन 2 साल की है, तो 2 साल का एन्युटी टेबल से वैल्यू ले लियो 1.735. एग्जाम में आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एग्जामिनर आपको एन्युटी टेबल लाने के लिए नहीं बोलेगा. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इसलिए मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ. 1.735 आपकी जो है मशीन बी के 2 इयर्स के लिए हो गया. तो आपको जो रनिंग कॉस्ट आ रहा है मशीन बी का वो होगा 2,08,200. क्लियर? टोटल आउटफ्लो कितना हो रहा है मशीन बी का? 4,08,200, यानी टोटल नेट आउटफ्लो, यानी जो ईयरली परचेस्ड है प्लस आपका जो रनिंग कॉस्ट है. अब टोटल आउटफ्लो हो गया. उसके बाद जो हमारी एन्युटी वैल्यूज थी उसे हम डिवाइड करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो प्रेजेंट वैल्यू है हर साल कितनी आएगी.
यानी हर साल मेरे जेब के ऊपर प्रेशर कितना का कितना आउटफ्लो खर्चा होगा। हम इनफ्लो क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? हम इनफ्लो इसलिए नहीं ध्यान दे रहे क्योंकि कंपनी ने डाटा कुछ गिवन नहीं दिया है, हमें बस ये बता दिया कि कैपेसिटी आइडेंटिकल है ना। तो जब कैपेसिटी आइडेंटिकल है तो वो एक समान ही हमें इनपुट के फॉर्म में देगी, और अगर सेल होगा तो सेम रेट में होगा, चाहे मशीन ए ले चाहे मशीन बी ले, है ना। तो लेकिन अब हमें आउटफ्लो पे ही फोकस करके डिसीजन लेनी है, क्योंकि इनफ्लो में क्या है, कंपनी ने डाटा को साइलेंट रखा है। हमने पीवी फैक्टर से डिवाइड किया मशीन ए को 2.486, क्योंकि वो 3 इयर्स की थी, 10% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था, और मशीन बी को 2 इयर्स है क्योंकि 10% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 इयर्स से। ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें हर साल प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में, हर साल, क्योंकि हम, आप सोचेंगे यार डिवाइड बाई 3 कर देते, डिवाइड बाई 2 कर देते, तो वो प्रेजेंट वैल्यू में नहीं आता, उसमें इन्फ्लेशन नहीं एडजस्ट होता। ठीक है, तो हमें अभी हमें जो है ईयर का एडजस्टमेंट भी तो करना है, इन्फ्लेशन भी तो एडजस्ट करना है, इसलिए हमने प्रेजेंट वैल्यू से ही डिवाइड करेंगे 2.486 और 1.735 रिस्पेक्टिवली। इससे हमें हर साल प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में कितना कैश आउटफ्लो होगा। मशीन ए में आता है आपका 2,06,76, 2,06,76, और मशीन बी में आता है 2,35,274। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारे जेब से जो आउटफ्लो है वो मशीन ए के केस में कम है, तो जब मशीन ए के केस में आउटफ्लो कम है तो ऑब्वियसली हम मशीन ए को चूज करेंगे। ठीक है, और इनफ्लो की कोई बात नहीं है, आउटपुट कैपेसिटी एक ही जैसी है, सेल करेंगे तो एक ही सामान करेंगे, तो मेन खर्चे की बात आती है, तो ए के केस में खर्चा कम है तो हम किसको चूज करेंगे? मशीन ए को। सो आई होप आपको आज की बात से ये क्लियर हो गया हो। ठीक है, हम मशीन ए को चूज करेंगे। सो आई होप दिस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट दीज क्वेश्चन आर नॉट एक्चुअली दैट मच डिफिकल्ट, which gives us like a thought process from the reading of the questions. These are easy, but you need a static approach or some strategical approach. There might be a point in a question that trouble you in the examination hall, but at least you can do the stepwise. Okay, तो हमें आशा है कि आज के क्वेश्चन से कुछ आपको वैल्यू एडिशन हुआ हो। अगर आपको वैल्यू एडिशन हुआ है तो प्लीज डू लाइक एंड अपना जो है इनपुट दिया करें, आप मैक्सिमम बेनिफिट और किन तरीकों से उठा रहे हैं, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, बिकॉज आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ रोड मैप एंड यू हैव टू ड्राइव योर ओन कार। ठीक है, दिस इज द मेन फंड आई वांट टू शेयर विथ यू। सो कीप वर्किंग हार्ड, नए क्वेश्चंस और लेकर के आएंगे, नई स्ट्रैटेजीज, और हर एक क्वेश्चंस में कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिलेगा। So keep practicing. Take care. Bye bye and Jai Hind.